Hello all my dear students, welcome to our channel SGTN's online tutorial. Now students, this video is exclusively for my dearest students of standard 9th, chapter 11, construction. अब students constructions को मैं cash marks मानता हूँ. Constructions होते भी बहुत simple हैं. Number of questions are very limited and you are getting full out of full marks and no formula, nothing. Ready? So let's begin this very simple chapter, constructions. So please get ready with your rounder, pencil and scale. So let's go. Let's start chapter 11, constructions. तो students, जो first sum है, जो first construction है, यहां मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी given angle का bisector कैसे बनाते हैं. Bisector जैसे आपको पता होगा, bisector means that divides the angle into two equal parts. अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एंगल है ABC, तो प्लीज आप अपने पहले स्केल से एक एंगल बना दीजिए ABC. यहां मैंने एक अक्यूट एंगल बनाया है लेस देन 90. आप चाहें तो राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल भी ले सकते हैं. सो नाउ आई नीड टू बाइसेक्ट दिस एंगल ABC. So how to draw bisector? Very simple. Now students, whenever you are using a pair of compass, काफी लोग इसको राउंडर कहते हैं, तो ये जो pointed end है, this is called the center, और ये जो distance है pointed end और pencil के बीच में, this is called the radius. So remember this center and this is the radius. Now students, what you have to do is, first you keep center at B. I repeat, keep center at B. Take any radius. मतलब पेंसिल और पॉइंटेड एंड के बीच में कुछ भी छोटा सा डिस्टेंस ले लीजिए या कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए. कीप सेंटर एट B एंड मेक वन आर्क. आई रिपीट, टेक सेंटर एट B एंड जस्ट मेक वन आर्क. अब ये जो आपकी आर्क है, इट इंटरसेक्ट्स BC एट D एंड AB at E. Correct students? Now the next step. Take center D and textbook में लिखा हुआ है take radius more than half D. But I suggest आप center D पे रख के same radius रखिए जो आपने पहले लिया था. जो इस आर्क बनाने के लिए रेडियस लिया था ना, रेडियस वही कांस्टेंट रखिए. सेंटर D पे रख के make one arc in the interior of angle ABC. Now you put center at E and repeat the same thing. Center E पे रख के same radius, make the arc. तो you will find that जो आर्क हमने D पे सेंटर रख के बनाया और जो आर्क हमने E पे सेंटर रख के बनाया, ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और उस पॉइंट को हम लेबल कर लेते हैं एज F. Let's name it as F. Now what to do? Take a scale and join BF. So my dear students, this FB is the bisector of angle ABC. आप चाहें तो प्रोटेक्टर को यूज करके चेक कर सकते हैं कि एंगल FBC और एंगल ABF ये दोनों एंगल्स इक्वल बन चुके हैं. So BF is the bisector. So students, here we complete the first very easy construction, how to construct the bisector of given angle. Right. अब स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा जाए लिखने के लिए, तो बहुत सिंपल है. पहले हमने क्या किया है, हमने एंगल ABC बना दिया जो हमारा गिवन एंगल है. फिर हमने सेंटर D पे रखा, एनी रेडियस, वी हैव मेड वन आर्क. देन सेंटर E, सेम रेडियस, वी मेड द आर्क. And then we have named the point of intersection as F. और फिर हमने BF को ज्वाइन कर दिया. तो जो आपने ड्रॉ किया है ना, वही आपको लिखना भी है. कैसे? देखो मैं बताता हूं. सो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया स्टूडेंट्स, दीज आर योर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. देखो पहले हमने सेंटर B पे रखा एंड वी हैव मेड वन आर्क. रेडियस कुछ भी लिया एंड दिस आर्क इंटरसेक्ट्स BC एट D and BE at E. Then we took D and E as center
एंड वी मेड आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, और लास्ट में हमने बी एफ को ज्वाइन किया. सो बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. Right, students? So let's start now construction number 2. Now students, the second construction, construct perpendicular bisector of given line segment. इसके लिए students सबसे पहले हम लोग कोई भी एक line segment बना देंगे. Suppose I have made a line segment AB और हम उसकी कोई भी length ले सकते हैं. I have taken 7 centimeter. Okay. Now students, we have to make the perpendicular bisector. Bisector मतलब जो AB के मिड पॉइंट से पास हो एट 90 डिग्री. तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, कीप सेंटर एट B, कीप रेडियस मोर देन हाफ AB. ये जो AB की लेंथ है ना, तो ये रेडियस AB की लेंथ के हाफ से ज्यादा होना चाहिए. अंदाजे से ले लो, ये 7 है तो ये रेडियस 3.5 से ज्यादा होना चाहिए. सो नाउ मेक 1 आर्क ऊपर, AB के ऊपर, and 1 arc AB के नीचे. राइट, जस्ट सी लाइक दिस. एक आर्क बना दो सेंटर B लेके AB के ऊपर, और एक AB के नीचे, एक अपर हाफ प्लेन में और एक लोअर हाफ प्लेन में. नाउ द सेम थिंग यू रिपीट बाय टेकिंग सेंटर A एंड सेम रेडियस. ओके, सो टेक सेंटर A एंड सेम रेडियस एंड अगेन मेक एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे. So like this. Now let this point of intersection be P and Q. Now you just join PQ and your perpendicular bisector will be ready. So students, as you can see, this PQ is the perpendicular bisector of AB. And if the steps are asked, then the first point will be take A and B as center and radius more than half AB. Draw arcs on both sides of AB and let these arcs intersect at P and Q. Join PQ. So PQ is the perpendicular bisector of our given line segment, that is AB. Right students? So ये दो basic constructions हैं, how to make angle bisector and how to make perpendicular bisectors of line segment. Now let me teach you how to make 60 degree angle विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर. बिना प्रोटेक्टर को बनाए 60 डिग्री एंगल हम कैसे बना सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन नंबर 3 नाउ. नाउ स्टूडेंट्स, इन कंस्ट्रक्शन 3 वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री. उसके लिए करना क्या होगा, पहले आपको कोई भी एक रे बनाना है AB एंड एट पॉइंट A विच इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, यहां से आपको एक 60 डिग्री बनाना है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, टेक एनी स्मॉल रेडियस. ये मैंने राउंडर ले लिया. आई हैव टेकन वेरी स्मॉल रेडियस एंड दिस रेडियस आई विल कीप सेंटर एट A. आई रिपीट, सेंटर को मैं A पे रख देता हूं. सो ये मैंने सेंटर A पे रख दिया. राइट, अब सेंटर A पे रख के एनी रेडियस आई एम जस्ट मेकिंग 1 आर्क. ये जो आर्क बनी ना स्टूडेंट्स, लेट दिस आर्क इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट D. नाउ टेक सेंटर D एंड सेम रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क हियर. पहले वाली बड़ी आर्क को एक और आर्क से इंटरसेक्ट करो और उसका सेंटर D पे रखना है एंड सेम रेडियस. सो लेट दीज 2 आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E. Let these 2 arcs intersect at point E. Now finally join AE. So students, ये जो आपका एंगल बनाना, this is of 60 डिग्री. आप चाहें तो एक प्रोटेक्टर से इस एंगल का मेजर कीजिए, it will come surely 60 डिग्री. So angle EAB is having measure of 60 degree. Yes students, now let's go on to the next question. How to construct an angle of measure 120 degree. ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ रे AB. और जैसे पहले मैंने आपको 60 डिग्री सिखाया था ना, फर्स्ट आई विल कंस्ट्रक्ट अ 60 डिग्री एंगल. So first of all, I need to take center A,
any radius, and let me draw one arc. Center A, any radius, draw an arc. So students, my arc is ready. Let this arc intersect ray AB at point D. Now taking center D, same radius, let me make one more arc, and this point of intersection let me name as E. ठीक है, अब सेंटर E पे रखो सेम रेडियस एक और आर्क. Center E, same radius, let me make one more arc, and this point of intersection BF. So join AF. जी स्टूडेंट्स, so AF को join करने से my 120 degree is ready. So this is a very simple construction on how to make an angle of measure 120 degree. Right students? Now students, having understood how to draw 60 degree and 120 degree, now let us begin the first exercise 11.1. अब फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री. अब स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन है. 90 डिग्री और भी आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस में काम आएगा. एट द सेम टाइम इट विल बी वेरी यूजफुल इन स्टैंडर्ड 10th ऑल्सो. So how to construct an angle of measure 90? Let's begin. So first let me draw one ray AB. फिर क्या करना है? Center A, any radius, make one arc. जैसे हमने 60 डिग्री में किया था. So here I begin. और आप भी शुरू कीजिए. Center A, any radius, draw an arc. Yes students, my arc is ready and name this point as D. The next thing is taking center D, any radius, make one arc, and then keeping center here, make one more arc. तो हम इस intersection point को let's name as E, and this point of intersection is F. Right students, अब क्या करना है? Keep center first at E and draw an arc above, and then a center at F. And repeat the same process. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कुछ भी नाम दे देते हैं. से फॉर एग्जाम्पल G. अब मैं AG को ज्वाइन करता हूं. सो दिस इज 90 डिग्री. क्या किया मैंने? पहले सेंटर A पे रखा, आई मेड वन आर्क, दिस पॉइंट इज D. फिर सेंटर D पे रख के फिर से एक आर्क बनाया, फिर सेंटर E पे रख के एक आर्क बनाया, आई गॉट F. And then keep center at E and F one by one and draw arcs at the top intersecting at point G. Yes students, so your 90 degree is ready. Now students, this is a very simple method of making 90 degree. मैंने भी मेरी स्कूल में इसी तरह सीखा था 90 डिग्री बनाना. But there is one more method of making a 90 degree angle जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी. Just focus on it. सेम कंस्ट्रक्शन, सेम क्वेश्चन, बट मेथड इज डिफरेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन. कैसे करते हैं अभी आपको सिखाता हूं. नाउ स्टूडेंट्स, जो दूसरा मेथड है ना 90 डिग्री बनाने का, सपोज हमें ए पे 90 डिग्री बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रे को एक्सटेंड कीजिए ऑन अदर साइड एंड मेक इट अ लाइन. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस रे को एक्सटेंड कर दिया ऑन अदर साइड. अब सेंटर ए रहना है, any radius, and we have to make a semicircle. Center A लेके any radius, we have to make one semicircle. Right students? So let me do it. Let this semicircle intersect line BC at E and F. अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब सेंटर पहले मैं F पे ले रहा हूं, and the radius should be more than half EF. सेंटर में ले रहा हूं F पे एंड रेडियस शुड बी मोर देन हाफ EF. आप EF भी ले सकते हो या एटलीस्ट मोर देन हाफ EF, जस्ट लाइक दिस. सी, मोर देन हाफ EF. सो taking center F and radius more than half EF, we have to make an arc on any one side of EF. On any one side मतलब जैसे मैंने यहाँ पे
ऊपर की तरफ बनाया, टेकिंग सेंटर एफ, मैंने एक आर्क बनाया ऑन द अबाउ EF, और वही सेंटर E पे लेना है एंड रिपीट द सेम थिंग. नाउ स्टूडेंट्स, wherever they intersect this point, let us name it as C and join CA. ये स्टूडेंट्स, एक बार आपने CA बना दिया ना, तो एंगल CAB is 90 डिग्री. I repeat, एंगल CAB is 90 डिग्री. So 90 डिग्री के दो मेथड्स है स्टूडेंट्स, वन इज दिस एंड वन इज अ ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था. जी सर, एक ये मेथड है. सो विच एवर यू फील कन्वीनियंट, प्लीज प्रैक्टिस. ठीक है. और स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ देखते मत रहना, साथ साथ प्लीज वीडियो को पॉज कर करके हर स्टेप मेरे साथ करिए. देन एंड देन द कंस्ट्रक्शन चैप्टर विल बी क्लियर. ओके, लेट्स गो फर्दर. सो 90 डिग्री इज रेडी. अब स्टूडेंट्स, 90 का हाफ क्या होता है? व्हाट इज हाफ ऑफ 90? यस, हाफ ऑफ 90 इज 45. एब्सोल्युटली. सो अब मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 45. उसके लिए पहले हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, चाहे आप इस मेथड से बनाएं या इस मेथड से बनाएं, इट्स अप टू यू. जी सर. सो सेकंड कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 45. अब इसके लिए पहले जो मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड सिखाया, उस मेथड से पहले हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So here we start. First I have to take center A, any radius, and I need to make an arc which intersects AB at D. Okay, so मैं एक रेप आर्क बना रहा हूं which intersects AB at D. ठीक है, please. So students, after we have got D, let's go further and make one more arc. Let us name this as E. और इसको नाम दे देते हैं हम लोग F. So this point is E and this point is F. Now let's go further. Take center E and make an arc center F, एक और arc, and let these two arcs intersect each other at C. So angle CAB is 90 degree ready. अब स्टूडेंट्स, 90 डिग्री बनाने के बाद अभी हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है. 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना है. अब उसके लिए क्या करना है, ये जो आपकी पहली आर्क है, ये जो आपकी पहली रे है AC और AB, अब चेक करो AC आपके पहले पहले आर्क को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट को हम H नेम दे देते हैं. तो H और D पे सेंटर रख के 1 by 1 हम लोग आर्क्स बनाएंगे. पहले D पे सेंटर रख रहा हूं एंड लेट मी मेक वन आर्क. सेंटर D, मेक वन आर्क, और उसके बाद वही रेडियस सेंटर H पे रख रहा हूं एंड लेट मी मेक वन मोर आर्क. सो ये दोनों आर्क्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज इस पॉइंट को नेम इट एज G. जॉइन AG, तो आपका बाइसेक्टर रेडी है. नाउ स्टूडेंट्स, इस बाइसेक्टर ने क्या किया है, ये जो पूरा एंगल 90 था ना, उसको 45 में डिवाइड कर दिया. और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 45 डिग्री. सो एंगल GAB बोलो या GAD बोलो, वन एंड द सेम. सो एंगल GAB इज हैविंग मेजर 45 डिग्री, या आप एंगल GAC भी बोल सकते हो, ये भी 45 डिग्री है. राइट स्टूडेंट्स, इजी. पहले 90 बनाना है, फिर 90 को बाइसेक्ट करना है, सो यू विल गेट 45 डिग्री. ये स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो फर्दर. हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल विथ मेजर 30 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर दैट यू हैव टू थिंक 30 किसका हाफ है? किस एंगल का हाफ 30 होता है? यस, द आंसर इज करेक्ट, 60. और 60 बनाना हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है. तो पहले आपको 60 डिग्री बनाना है और फिर 60 डिग्री का बाइसेक्टर. सो 60 का बाइसेक्टर विल डिवाइड 60 डिग्री इंटू 30. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, 60 डिग्री बनाने के लिए फर्स्ट लेट्स टेक सेंटर एज A, एनी रेडियस, मेक वन आर्क, एंड लेट अस नेम दिस पॉइंट एज D.
center A, any radius, make an arc. So here I got point D. Then center D, same radius, make an arc. So this point is E. अब मैं क्या करूंगा, A और E को मैं ज्वाइन कर दूंगा. So my 60 degree angle is ready. So once your 60 degree angle is ready, now keep center at D, same radius, make one arc, and then keep center at E, same radius, make the arc. दोनों आर्क्स जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नेम दैट पॉइंट एज F. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं F नाम दे देता हूं. Join AF. So the bisector of 60 degree is ready. तो स्टूडेंट्स हमारे बाइसेक्टर ने पूरे 60 डिग्री एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 30-30. सो एंगल FAB is 30. Also angle FAE is 30. So students, here I complete the first video of exercise 11.1. इसका एक other part I'll be coming up very soon. So I divide exercise 11.1 into two parts. This is the first video. So students of standard 9th, do let me know in the comment box, how do you find these constructions? Is everything clear to you? Are the concepts clear to you? एकदम सही जा रहा है सब कुछ? Comment box में लिख के मुझे बताइए. And हमारे वीडियो को maximum likes दीजिए. And also do share with your friends. And let them also gain this knowledge. And if you haven't subscribed our channel yet, do it right now. So, जल्दी से फिर मिलते हैं with yet another video of construction. Till then, bye bye.